الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ آج اس کا سبق نمبر 83 ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منافقین نے جو کہا کہ جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو میں نے کل تلاوت اور ترجمہ پیش کر دیا تھا آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا، تو اسی ضمن میں جو منافقین نے کہا تھا نا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح یہ بے وقوف لاتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کی طرح بے وقوف بن گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کے معیار ہونے پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب مراد ہیں، تو یہ بھی صحابی ہیں۔ علامہ سیوطی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ تاریخ ابن عساکر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم ہے۔ شیعہ مفسر شیخ فضل بن حسن تبرسی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی اس طرح تصدیق کرو جس طرح آپ کے اصحاب نے اس کی تصدیق کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے یہودی ایمان لائے تھے ان کی طرح آپ کی تصدیق کرو۔ ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی ہم زندیق کے متعلق بھی گفتگو کر لیں، زندیق کی توبہ کی قبولیت پر دلیل کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت سے زندیق کی توبہ کی مقبول ہونے پر استدلال کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کی خبر دی اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظاہر اسلام کے قبول کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے فاسد عقائد کا جو علم تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ ثابت ہے کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں کفار سے قتال کی مشروعیت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، البتہ اسلام کا حق لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اور منافقین بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لہذا قتل کا حکم جو منافقین کے بارے میں نہیں ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق کا ایمان لانا اور اس کی توبہ مقبول ہے۔ اسی طرح
ज़िंदीक को क़ियास किया गया है। अब हम पहले ज़िंदीक और मुर्तद की तारीफ़ ज़िक्र करेंगे, फिर इनके शरई हुक्म का बयान करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि यह जो हदीस पाक है कि जब तक वो कलमा न पढ़ लें उनका कत्ल किया जाए, मतलब ये हदीस पाक तफहीमी एतबार से इस पे अभी गुफ्तगू है और सही बुखारी की हदीस पाक है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया है। तो इस हदीस का जो लुबुल बाब है वो कतई इसी हदीस से इस्तदलाल नहीं करता। जब कुफार के कत्ल का मामला आएगा तो इसमें जुजिया वाले भी हदीस आएंगे और कुरान की आयत भी शामिल होंगी, फिर ये मसला मुकम्मल बनेगा। यहाँ पर आपको ये बात समझाना मकसूद है कि कुफार के साथ किताल यानी जंग का हुक्म दिया गया था। इसका मैं मुख्तसर साहब के सामने कुछ खाका इस तरह पेश करता हूँ कि जो मुसलमानों के ममालिक हैं वहाँ पर जो कुफार हैं, जो काफिर और मुशरिक है, जो गैर मज़ाहिब है, वो उनका जो तरीक़ाकार है रहने का वो ये है कि या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे और ज़कात अदा करेंगे, नमाज वगैरह, और या फिर वो हाकिम वक़्त को जजिया देंगे। जजिया का से मुराद ये है कि वो एक टैक्स है जो अपने कारोबार में से कमा के वो अदा करेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, ख़ास तौर पे जो ये कादियानी मुशरिक काफिर टोला है, इन्होंने जजिया का मतलब ये लिया कि भाई मरो या जियो, चंदा जरूर तुसी जमा कराना कादियान दे कब्रिस्तान दा, ਤੁਹਾਨੂੰ कबर की जगह फिर मिलनी है, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ लाश भी जी ना बाहर पई गलती सड़ती रहेगी। तो यहाँ पर जजिया का मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो है वो टैक्स अदा करेगा, जजिया अदा करेगा, बल्कि वो लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं और जिन पर मुसलमान होने के एतबार से मुसलमानों पे जब उनको ज़कात दी जाती है तो हुकूमत अपने फंड से ऐसे गैर मज़ाहिब गरीब लोगों का भी ख्याल रखे। ये है सही शरई हुक्म। ये नहीं है कि जाओ जी मरो या जीवो जजिया अदा करो, तो ऐसा ये नहीं है दीन का मामला। तो ये मैंने मुख्तसर साहब के सामने जो खाका पेश किया है, इस हदीस का यहाँ पर जो ताल्लुक कायम हो रहा है वो मुनाफिकीन के क़िताल का हुक्म नहीं दिया, कुफार के क़िताल का हुक्म दिया है। पूरा मसला मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। इस हदीस का जो मकसद है वो सिर्फ मुनाफिकीन के साथ रब्त का ताल्लुक किया गया है। तो मसला पूरा मैंने आपको बयान कर दिया है। अब ज़िंदगी की तहकीक और इसके शरीर ज़िंदगी क्या होता है। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने काफिरों की हस्ब अक़साम बयान किए। काफिर जो शख्स ज़ाहिरन ईमान ना लाए, मुनाफिक जो शख्स बज़ाहिर ईमान लाए और हकीकत में काफिर हो। मुर्तद जो शख्स इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से रुजू करके कुफ्र को कबूल कर ले। मुशरिक और जो शख्स यानी मुशरिक वो शख्स है जो मुतअद्दिद खुदा माने, और किताबी वो शख्स है जो अदयान साबिका मनसूखा का मुतक़िद हो, जैसे यहूदी और ईसाई। अच्छा, ये अहले किताब है, मुसलमान अहले किताब नहीं है। चेंज है कि मुसलमानों के पास भी शरीयत के लिए किताब मौजूद है, मगर इनको अहले किताब नहीं कहा जाएगा। अहले किताब जो है वो ईसाई यहूदी वगैरह। अच्छा, दोहरिए ये वो है जो कदीम को माने और हवादिस की निस्बत दहर की तरफ करके एक दीन गढ़ लें और उसको मानते रहें। और मुअत्तल ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम ना करें। ज़िंदीक वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एतराफ़ करता हो, शायर इस्लाम का इजहार करता हो और इसके दिल में कुफ्रिया अक़ाइद हो।
मसलन ऐसे कायद हो कि यार काफिर भी तो इंसान ही है ना, यानी उनका भी जो है वो मसावी ख्याल रखना चाहिए जैसा कि मुसलमानों का, तो इंसानियत के एतबार से सबका ख्याल रख, यानी नरम गोशा पाया जाता हो, तो अकायद उनके मुतज़लज़ल हो, ये लोग भी ज़िंदीकीन में शामिल हैं। अच्छा, मुल्हिद वो शख्स होता है कि शरीयत मुस्तकीमिया से कुफर की किसी हुज्जत की तरफ मिलान करे और इसमें वजूद बारी को मानने की शर्त है, न नबूवत के मानने की शर्त है, न कुफर को छुपाने की शर्त है, न पहले इस्लाम को मानने की शर्त है। ये कुफर की तमाम इकसाम है। मुल्हिद उसको कहते हैं जो सिरे से ही अल्लाह का इनकार करता है। अल्लामा सैयद अहमद तहतावी हनफी ज़िंदीक के मुताल्लिक लिखते हैं कि फतावा कारी इल्हादिया में लिखा है कि ज़िंदीक वो शख्स है जो दहर के कदीम होने का मोतक़िद हो, खालिक और आखिरत पर ईमान ना लाए और इसका एतकाद हो कि अमवाल और महरमात मुश्तरक हैं। इसी किताब में दूसरी जगह लिखा है कि ज़िंदीक वो शख्स है जो खुदा का कायल हो, न आखिरत का और न किसी चीज़ को हराम समझता हो। अल्लामा बीरी से मनकूल है और फतह अल-कदीर में है कि ज़िंदीक किसी दीन का कायल नहीं होता। और हाशिया अबी सऊद में मुल्तकात से मनकूल है कि ज़िंदीक की 3 किस्में हैं। ज़िंदीक असली ये वो अजमी शख्स है जो अपने साबिक शिरक पर कायम हो। ज़िंदीक गैर असली ये वो शख्स है जो पहले मुसलमान हो और फिर ज़िंदीक हो जाए। इस पर इस्लाम पेश किया जाएगा, अगर ये मुसलमान हो गया तो फबह है, वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि ये मुर्तद है। तीसरी किस्म जो है उस शख्स की है जो शख्स पहले ज़िम्मी और फिर से ज़िंदीक हो जाए, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कुफर मिल्लत वाहिदा है। और ज़ाहिर ये है कि ज़िंदीक की तौबा मकबूल है और तौबा इससे कत्ल को साकत कर देती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसलिए हम कादियानियों को दावत हक भी देते हैं कि वो तौबा कबूल कर लें। अल्लामा तातावी ने ज़िंदीक की जितनी तारीफ़ें लिखी हैं ये सब इसके लुग़वी मानी है। इस्तिलाह शरअ में इसका वही मानी है जो अल्लामा तफ्ताज़ानी ने लिखा है। अल्लामा शामी लिखते हैं कि अल्लामा इब्ने कमाल पाशा ने अपने रिसाला में लिखा है कि लुगत में ज़िंदीक इस शख्स को कहते हैं जो खालिक की नफ़ी करे और जो मुतअद्दिद खुदाओं का कायल हो और जो अल्लाह की हिकमत का इनकार करे। और इस्तिलाह शरअ में ज़िंदीक वो शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इतराफ़ करे और कुफ्र को मख्फी रखे। जैसा कि शरअ मकासिद में है कि ज़िंदीक का हुक्म ये है कि अगर वो अपनी गुमराही की तरफ दावत नहीं देता तो फिर इसकी 3 किस्में हैं, ज़िंदीक असली गैर असली और वो ज़िंदीक जो पहले अजमी हो। और इनकी तफसील अल्लामा तहतावी की इबारत में हमने पीछे बयान कर दिया। और अगर ज़िंदीक अपनी गुमराही की तरफ लोगों को दावत दे तो अगर इसने गिरफ्तार होने से पहले अपने इख्तियार से तौबा कर लिया तो इसकी तौबा कबूल होगी, वरना इसकी तौबा कबूल नहीं होगी और इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ये एतराज़ किया जाए कि ज़िंदीक तो अपने कुफर को मख्फी रखता है, वो अपनी गुमराही की तरफ कैसे लोगों को दावत देगा, इसका जवाब यह है कि वो अपने कुफर पर इस्लाम का मलमा चढ़ाकर और अपने अकायदे फासदा को अकायदे सहीह की सूरत में पेश करके लोगों को इसकी तरफ दावत देगा। जैसे कि हमारे ज़माने में इस वक्त में इस दौर में मरज़ई कादियानी वगैरह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसका आम खुलासा ये है कि पहली बात जो ज़िंदगी की मुल्हिद की किस्म है, मुल्हिद जो है वो सिरे से अल्लाह तबारक व तआला के कारखाना कुदरत के अल्लाह की तरफ निस्बत का कायल ही नहीं है। वो कायनात कैसे बनी और क़यामत का सिरे से इनकार, जन्नत दोज़ख का इनकार, तो ऐसे बेशुमार चीज़ें जो हैं उसे मुल्हिद कहते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, यही लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन इनको इल्म नहीं है।
सिरे से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जाहिल कह दिया। अब जरा खुद गौर कर लें, कादियानी भी गौर कर लें और दूसरे लोग भी जरा गौर कर लें। सहाबा कराम पर सब शतम की मजम्मत और इसके रद्द में कुछ गुफ्तगू करते हैं। मुनाफिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को जाहिल कहा तो अल्लाह ताला ने इनका रद्द किया और इनकी ज़्यादा जहालत बयान की है कि वो ना सिर्फ जाहिल हैं बल्कि इनको अपनी जहालत का इल्म भी नहीं है। और इस आयत में कसरे कल्ब है और कई वजह से ताकीद है। कसरे कल्ब का तकाजा ये है कि असहाब रसूल जाहिल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि यही जाहिल है और अपनी जहालत से भी जाहिल है और खुद को आलम समझ रहे हैं। और इस जुमला को अल्लाह ताला ने और इसमें तो जुमला से मौक़िफ़ फरमाया, जिसका असल ये है कि ये हमेशा हमेशा जहालत में रहेंगे और इनका अपनी जहालत का इल्म नहीं होगा। इन्हें अपने आप को पढ़े लिखे जैसे आजकल बड़े बड़े, तो लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो जाहिल है और ऐसी जहालत ज़्यादा लायक मजम्मत है। मैं मिर्ज़ा इंजीनियर की जूनियर जेल की बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर जेल में छोकरा, मैं उस जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो तौहीद की आड़ में इस कदर आगे गुजर जाते हैं कि वो बाकी तमाम चीज़ों को सिरे से ही छोड़ देते हैं। जैसे मिर्ज़ा जेल में शाही को नहीं, दूसरे लोग ज़रा सुलझे तरीके से बात कर लेते हैं, ये ज़रा बदतमीज़ है। तो जिस शख्स को किसी चीज़ का पता ना हो, इसमें सिर्फ एक जहालत है और वो बसा औक़ात माज़ूर होता है, और जब इसको इस चीज़ का पता चल जाए या इसको मसला बता दिया जाए तो इसकी जहालत ज़ायल हो जाती है और इसको हिदायत से नफ़ा पहुँचता है। और जो शख्स जाहिल हो वो अपनी जहालत से भी जाहिल हो, और इसमें दो जहालतें हैं, एक मसला से जहालत और दूसरे अपनी जहालत से जहालत, और इसको जहले मरक्कब कहते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि सहाबा कराम को सब्ब व शतम करना अल्लाह को बहुत नागवार है। ये ज़रा गौर कर लेना जो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बकवास करते हैं, ज़रा वो थोड़ी सी गौर कर लें इस बात पे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है और मकबूल बारगाह रिसालत है और रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन शामिल है। तो बाज़ मामलात जो लोगों की समझ में नहीं आते हैं तो ज़रूर दखल देना है। वेलने च बहुत उन्नी है गन्ने के नाल तो वो गन्ने में होकर तो निकलेगी। फिर ऐसे मामलात में मोहतरम दोस्तों अपना तराजू छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बस। अब ये फैसला अल्लाह की बारगाह में साफ साफ और वाज़ेह हो जाएगा। हमें अल्लाह ने कहा कि वो जो मेरे महबूब की ज़ियारत कर ले ईमान की हालत में अपनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। मुनाफिकीन ने एक बार सहाबा को जाहिल कहा तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयत नाज़िल कर दी, जिसका खुलासा ये है कि सहाबा जाहिल नहीं बल्कि इनको जाहिल कहने वाले खुद जाहिल है और अपनी जहालत से भी जाहिल है और इनका जहल दायमी है। अल्लाह ताला ने सहाबा के जहल से बरात की और इनको जाहिल कहने वालों की मजम्मत की है। तो अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक हमें भी आज ऐसे लोगों की मजम्मत में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो मुनाफिकों ने तो एक बार सहाबा को जाहिल कहा था, लेकिन जब तक कुरान मजीद पढ़ा जाता रहेगा ये कहा जाता रहेगा कि मुनाफिक जाहिल है और दायमी जहल में गिरफ्तार है। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा पर सब्ब शतम करने वालों का रद्द करना चाहिए और सहाबा का दिफा करना चाहिए कि ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। और आयत नंबर 13 तक सूरह बकरा की आयत नंबर 13 तक की तफसीर आज मुकम्मल हुई। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह 14 और 15 नंबर आयत की तफसीर आपके गोश गुजार करेंगे।
اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔